देश का विकास केवल कागज पर रह जाएगा। धन्यवाद सर। नेक्स्ट सदस्य माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी। धन्यवाद उपसभापति जी। एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बजट पे बोलने के मुझे अवसर दिया। मैं हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को भी बधाई देता हूँ कि 9वीं बार ये बजट जो पेश किया गया। दिस इज द फर्स्ट बजट ऑफ सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस सेंचुरी। एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारामन जी has presented for the 9th consecutive term, first of its kind in the country, a woman presenting a budget for 9 consecutive years. And budget, we have been discussing about 26 and 27. It's a long journey right from the day our beloved Prime Minister Narendra Modi ji has assumed the office. Since 2014 till today, the journey which took place, being a visionary leader by providing social security to the needy and marginalized sections in the country, he has initiated this Jan Dhan Aadhaar mobile and saw that every rupee which is sent from Delhi reaches to the last man in the society in their bank accounts. So the budget from 2014 not only covered the social security, even the development, and particularly infrastructure, railways, roadways, airways, waterways, never in the past. And moreover, the development which took place, you'll be surprised to know, it was 2 lakh crore budget for infrastructure, that capital expenditure in 2014, prior to Modi ji becoming Prime Minister. Now we see 6 times more, 12.2 lakh crores on infrastructure alone, and we have seen how these railways, roads, and even airways are now being developed. And even when it comes to health sector, Ayushman Bharat has been now introduced for the needy of the society, giving health security. Apart from that, 2-tier and 3-tier cities, smart cities, has also been introduced by our Prime Minister. And when it comes to the farmers, जब किसान के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो बनाया, हर सालिना 6,000 रुपये सीधा सीधा गरीब किसान के खाते में पहुंचाना ये संभव हुआ, क्योंकि हम सुन रहे थे जब कांग्रेस के शासन में उस समय प्रधानमंत्री के नाते खुद बताए, हम दिल्ली से अगर गरीब के हित के लिए 100 रुपये जब हम बेचते हैं, सिर्फ 15 रुपये पहुँचता था, बाकी 85 रुपये दलाली खाता था। ये था उनका ज़माना, ये था उनका कांग्रेस का शासन। आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सीधा सीधा गरीब के खाता में पहुंचता है और ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। इस तरह हमारे आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में जो मोदी जी ने हर बजट में जो किया जा रहा है, आज 2 लाख से लेकर आज 12 लाख तक टैक्स रिलीफ मुनाफा जो दिया, ये मोदी जी से मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए दिया। इस तरह मोदी जी जब बजट के बारे में बोलते हैं, इट्स नॉट अ गेम ऑफ अरिथमेटिक्स और नंबर्स, रुपी कमिंग एंड रुपी गोइंग इज़ नॉट अ बजट। ये बजट के माध्यम से ये हमारा ये रोड मैप है, विकसित भारत आने वाले हमारे 2047 में एक विकसित भारत लक्ष्य के माध्यम में ये बजट बनाया गया। हाउ नाउ यू सी दिस गवर्नमेंट particularly strongly believes in reforms, perform and transform. And this is the Reform Express this season we are being seeing how best this our country has become the fastest growing economic country in the world, the 4th consecutive time this government. And the GDP growth has reached almost 7.4%, and the inflation rate is the lowest ever, it is almost 2%. While the Congress and UPA budgets, we have seen the spreadsheets of scams and stagnation. Now Modi government paints a bold vision, turning dreams into deliveries. Under Congress, our economy was a leaky boat, stinking under 2G, Colgate, Commonwealth scams, where the only development was in Swiss bank accounts. Now we see
today the public capex, as I rightly said, it has increased 6 times from 2 lakh crores to 12.2 crores. We see startups now, the young youth who are educated, qualified. Our Prime Minister wanted all the youth of this country to become job creators rather than job seekers. इसलिए आज हम startups अगर देश के अंदर देखा जाए तो more than 2 lakhs. Hardly there were any startups during UPA regime. Startups माने how their people are employing even the upcoming students, giving proper skill development, providing employment potentials. Unicorns. Earlier there were no unicorns at all. Now we see more than 500 unicorns have come up under Modi's regime. So not only that, the poor, the poverty, almost 25 lakh poor families have been brought out of below poverty line. This is the vision of Modi government, not only just empowering, but entitlement rajniti jo karte hai. And from file culture to delivery culture. This is the attitude of the Modi government. And sir, when it comes to Telangana, हमारे तेलंगाना में जो कांग्रेस जो राज है, बार बार हमारे लिए क्या दिया, सरकार ने क्या दिया, बार बार बोलते हैं. मैं बताना चाहता हूँ, अरे हमारे मुख्यमंत्री तो यहाँ तक बोलते कि हमारे पास कुछ पैसा ही नहीं, खजाना खाली हो गया, खर्चा में डूबे हुए, ये बताते हुए जो फॉल्स प्रॉमिसेस जो देते हैं, ये गारंटी के नाम पर, अच्छे के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है, लोगों को पता चल गया. आज मैं बताना चाहता हूँ, पहली बार जब से हमारे आंध्र प्रदेश था, तब से लेकर 2014 तक पूरा प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाया गया था. मगर आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने 1,20,000 करोड़ खर्च करके आज 5000 किलोमीटर रोडवेज बनाया गया. ऑलमोस्ट सपोज टू बी द सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवेज इन द कंट्री तेलंगाना है. उतना ही नहीं, अब तेलंगाना के अंदर अभी जो रेलवे के बारे में हम चर्चा करेंगे तो हम सीधा बता सकते हैं कि रेलवे में जब अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, ज़्यादा से ज़्यादा यूपी के ज़माने में 886 करोड़ मिलता था रेलवे के लिए. मगर अब अकेला तेलंगाना के लिए 5,456 crores only for railways. So you can imagine, in spite of we are not having a government in Telangana, how Modi ji is committed to the welfare of the Telangana and the people of Telangana, how much concern is. Not only that, total worth of 47,984 crores are under progress for this railway project, sir. Amrit stations, almost 40 railway stations have been given in Telangana for Amrit stations for development. And total investment for this, 2,015 crores. And we have completed almost 4 stations, that is Begumpet, Karimnagar, Warangal, and Bala Brahmeshwara. Sir, you'd like to know, entire house should also know, people have got elected a Congress leader from Medak, the most backward district in the state. Sensing that if she gets elected, if she becomes a Prime Minister, that Medak is going to be developed and the poor of the Medak will be empowered. But unfortunately, nothing has been done. But after Modi ji coming to power, it is Modi ji who has given new railway station, Medak, Siddipet, and even Komaraveli. Now, these 3 stations have been given by Modi government. In spite of the Prime Minister, Congress, they did not able to give a new railway station also. Now, Modi ji believes Team India, irrespective of चुनाव के समय में राजनीति, चुनाव के बाद सभी राज्यों को, सभी वर्गों के हित के लिए काम करने वाली सरकार हमारा भारतीय जनता पार्टी सरकार है. अब वंदे भारत एक्सप्रेस जो है देश के अंदर जितने भी है, आज तेलंगाना के लिए आज 5 pairs of वंदे भारत एक्सप्रेस अब तेलंगाना के लिए आज जारी किया गया. दे आर ऑपरेशनल नाउ. ऑलमोस्ट अमृत भारत एक्सप्रेस ऑल्सो 3 pairs of services are now operational in Telangana connecting Hyderabad. 100% electrification has taken place in railways. Now ऑलमोस्ट हाई स्पीड कॉरिडोर्स पूरा इस बजट में पूरा देश के अंदर 7 हाई स्पीड कॉरिडोर जो दिया गया, अभी बताया गया हमारे नागर जी ने, उत्तर प्रदेश के लिए 2 दिया गया था, मगर तेलंगाना के लिए आज 3 हाई स्पीड कॉरिडोर दिया गया. मानो हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, हैदराबाद से पुणे. तो हमारा सरकार नहीं रहने के बावजूद भी किस तरह कटिबद्ध है हमारे मोदी जी ने आज लोग जान रहे. इसलिए आज तेलंगाना जो है आज जो कर्जे में डूबा हुआ है, आज कर्जे करने के लिए आज दोबारा कर्जा किया जा रहा है. इसलिए मैं आज इस बजट के नाम पे इतना ही नहीं, तेलंगाना के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिया गया बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में बीबी नगर में, और ट्राइबल यूनिवर्सिटी
जो आदिवासी मानते हैं, सम्मक्का सारक के नाम पर एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी दिया गया मोदी जी के ज़माने में, और एक टर्मरिक बोर्ड दिया गया निज़ामाबाद में हमारे किसानों के लिए, और एक वैगन फैक्ट्री वरंगल में, पहली बार एक वरंगल में हज़ारों लोगों को आज नौकरी प्राप्त करने के लिए एक वैगन फैक्ट्री भी दिया, और रिवाइवल ऑफ रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स फैक्ट्री विच इज सपोज टू बी द नाउ बोल फॉर एंटायर साउथ इंडिया, ये रामगुंडम में। मगर आज हम देखा जाए तो तेलंगाना के अंदर आज जो लोगों के बाद जो है RRR टैक्स चलता है, RR टैक्स चलता है। जो भी काम होना है तेलंगाना के सरकार के अंदर बिना टैक्स का, बिना कमीशन का, बिना करप्शन का कोई शासन ही नहीं है। अरे डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, अरे डेमोक्रेसी के बारे, लोकतंत्र के बारे में जो बात करते हैं, आपको जानना चाहिए लोकतंत्र के माध्यम हमारे जो राज्य में अब चुनाव जो हो रहा है म्युनिसिपल इलेक्शन स्थानीय इकाई में, हमारा जो कार्यकर्ता एक म्युनिसिपल काउंसिल के नाते जो कंटेस्ट कर दिया जा रहा, उसके ऊपर किस तरह दबाव डाला। ये मुख्यमंत्री का जिला है, वहां के मंत्री दबाव डालकर उसको चुनाव में विड्रा करने के प्रयास करे, तो आज कल रात में वो खुदकुशी किया, ये हैंग फॉर हिमसेल्फ। कल जो चुनाव होने वाले, ये लोकतंत्र के बारे में, ये हमारे संविधानिक पुस्तक लेके पूरा देश भर भ्रमण करते हैं, ये संविधान के ऊपर कितना विश्वास है इनको पता चलना है। लोकतंत्र में ये काउंसिलर वार्ड जीतने के लिए इतना तड़प रहे हैं, आज लोग पूरा देश जान रहे हैं। इसलिए ये जो बजट है 1 साल के लिए नहीं है या 5 साल के नहीं है, ये 21st सेंचुरी बजट है। आने वाले इतना विजनरी बजट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही संभव हुआ, इसलिए मैं इसका पूरा स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। ज़रूर आने वाले दिनों में इसका फ्रूट जो है तेलंगाना में भी प्राप्त होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे समय दिए। बहुत धन्यवाद, आभार।